اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس میں دوسرا سبجیکٹ مسائل شرعیہ کا بنیادی کتاب ہمارا اسلام پڑھائی جا رہی ہے۔ اس سے اول کا آخری سبق ہے، سبق نمبر 16۔ اس میں کچھ دعائیں دی گئی ہیں۔ ابھی تک مسائل تھے، اب کچھ دعائیں ہیں، دیکھ لیجئے۔ دعاؤں کے تعلق سے دیکھ لیجئے، دعائیں یعنی ہم کچھ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ دعا قرآن مجید میں یا حدیث شریف میں آئی ہے۔ اس سے پہلے دعا پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ جیسے کھانے کی دعا، سونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، یہ سب ہے نا، وضو میں دعائیں ہیں۔ تو بچوں کو یاد دلاتے ہیں اور بچوں سے پڑھواتے ہیں، بڑے لوگ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ بچوں کے لیے صرف بچے ہی پڑھنا ہے۔ بچوں سے پڑھواتے ہیں، جب تک بچے ہیں پڑھوائیں گے، جب ذرا بڑے ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے، اب نہیں پڑھے گا تو بھی نہیں پڑھوائیں گے۔ تو ایسا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے، اچھا بچے سے پڑھوائیں گے مگر خود نہیں پڑھیں گے۔ کھانے سے پہلے بچے کو بولیں گے، اپنے بچے کو چلو کھانے کی دعا پڑھو، یہ خود نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی کھا لیں گے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو ہر مسلمان کو پڑھنا ہے۔ اچھا دیکھیے دعائیں، سونے سے اٹھنے کے بعد، سوتے سے اٹھو تو یہ دعا پڑھو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ دیکھیے، سب تعریف اس اللہ کو جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ سو جانا بھی گویا ایک موت ہے، اور اڑ گئے تو گویا پھر ایک زندگی مل گئی۔ اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے یہ چھوٹی موٹی موت کے بعد پھر ایک زندگی عطا فرما دی۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے کی دعا دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحیم اور رحم کرنے والا ہے، الہی اس میں ہمارے لیے برکت اتار اور ہمیں اس سے بہتر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ایک ہی کام کے لیے حدیثوں میں مختلف قسم کی دعائیں آتی ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے، بعض کتابوں میں وہ دعا۔ تو وہ دعا پڑھنا بھی صحیح ہے، یہ دعا پڑھنا بھی صحیح ہے۔ کوئی دوسری دعا پڑھ رہا ہو تو اس سے الجھنا نہیں چاہیے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں یہ ہے، نہیں وہ بھی ہے یہ بھی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا نمبر 3، کھانے کے بعد کی دعا دیکھیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ، سب تعریف اس اللہ کو جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور مسلمان بنایا۔ یہاں بھی کھانے سے پہلے بھی برکت کی دعا تھی اللہ کی حمد کے ساتھ، اور یہاں پر بھی اللہ کے حمد کے ساتھ شکر ادا کر رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے نا کہ سب تعریف اس کو جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور مسلمان بنایا۔ کھانا کھاتے ہی بھول نہیں جانا میں مسلمان ہوں۔ کھانا کھاتے ہی لوگ بھول جاتے ہیں میں مسلمان ہوں، کون مسلمان کیا مسلمان، سب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد ہی یاد رکھنے کا ٹائم ہے میں مسلمان ہوں۔ کھانے سے پہلے تو سب کو یاد رہتا ہے، کھانے کے بعد یاد رکھنا میں مسلمان ہوں۔ چلیے، تو یہ دعاؤں میں یہی حکمتیں ہیں۔ اب یہ دعا پڑھنے والا بھولے گا کیا؟ اسلام کے مطابق کام کرے گا۔ اچھا دیکھیے، تو کھانا کھانے کے بعد ذرا سرکشی آتی ہے نا آدمی کے اندر، پھر وہ مسلمان ہوں یاد آئے گا تو سرکشی ختم ہو جائے گی، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ آئے گا۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا دیکھیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، سب تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا اور ہماری طاقت کے بغیر ہمیں عطا فرمایا۔ ہماری کیا اوقات ہے، یہ لباس حاصل کرنے کی ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ نے پیدا کیا اس کو، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ایسا سوچ کے پہنیں گے تو تکبر نہیں آئے گا، ورنہ کپڑے پہننے کے بعد لوگوں کے اخلاق بدل جاتے ہیں۔ بعض کپڑوں سے بھی
लोग पहचानते ही नहीं। बास कपड़े ऐसे पहन लेते हैं, वो पहनने के बाद ऐसी कैफियत में आते हैं कि अब हर एक को पहचानते ना, हर एक से मिलते ना, हर एक से बात करते हैं, वो अलग कैफियत में रहते हैं। फिर वो लिबास जब उतार देते हैं तो अब नॉर्मल कैफियत में आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नाम से पहनेंगे तो जब ये एहसास होगा कि मेरी क्या औकात है, अल्लाह ने दिया मैं पहन रहा हूँ, तो अल्लाह के बंदों से आजिज़ी के साथ रहेंगे, तकब्बुर नहीं आएगा। हाँ। अच्छा, आईना देखने की दुआ देखिए, अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। इलाही मेरा मुंह रोशन कर जिस दिन कुछ मुंह रोशन होंगे और कुछ काले होंगे। इसमें अल्फाज क्या है, मेरा मुंह उजाला कर, उजाला कर यानी रोशन कर, जिस दिन कुछ मुंह उजाले हों यानी रोशन हो और कुछ सियाह यानी काले। आईना देखते वक्त आखिरत में चेहरा अच्छा होने की फिक्र, कि अल्लाह आखिरत में मेरा चेहरा रोशन रहे। तो आईना देखते ही आदमी को क्या था, अभी चेहरा ठीक कर लेने का ख्याल आता ना, अभी दुनिया में चेहरा ठीक करने का। ये दुआ हमको क्या ज़हन देती है, दुनिया में चेहरा ठीक करने से कुछ नहीं होगा, आखिरत में चेहरा रोशन रहे इसकी दुआ करो। तो ये दुआ करके आईना देखने वाला अपने हुस्न के तकब्बुर में नहीं आता, मैं अच्छा हूँ, ऐसे तो हर कोई अपने आप को अच्छा ही समझता है। तो ये जज्बा पैदा होता है कि दुनिया में मेरा चेहरा जैसा भी रहे, अल्लाह आखिरत में रोशन रहे, ये दुआ है। इस जज्बे से आईना देखने वाला कभी अपने हुस्न के ज़ोम में मुब्तला नहीं होगा। क्या आज चेहरा अच्छा है कोई कमाल की बात नहीं, आखिरत में अच्छा रहे ये कमाल की बात है। तो आईना देख के ये दुआ करना है। तो आईना ऐसे ही जो देख रहा है ऐसे देख रहा है, ये दुआ पढ़ के आईना देखने वाला मेकअप करेगा, हाँ? या थोड़ा खराब चेहरा दिखा तो दावत में नहीं जाएगा, आज नहीं भाई आज जरा है लोग ऐसे, आज जरा चेहरा ठीक नहीं है, थोड़ा फुंसी हो गई है, कुछ हो गई है, दावत में नहीं जाएंगे, नहीं भाई आज जरा जमेगा नहीं, कोई माना नहीं रखता। चेहरे का अच्छा होना हमारे इख्तियार में नहीं है, जबरदस्ती आप अच्छा करें तो वो तो बनावट है, हकीकत तो नहीं है। तो जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है उस पे ना हमारी तारीफ होगी ना मजम्मत होगी। कोई खूबसूरत है तो उसका क्या कमाल है, उसमें अल्लाह ने दिया वो है, उसका अपना, उसके अखलाक भी खूबसूरत हैं तो काबिल तारीफ है कि अखलाक तो उसके अपने लिए हुए हैं। और कोई अगर बदसूरत है तो उसमें उसका कोई कसूर है क्या? खूबसूरती बदसूरती कहीं चॉइस करके लेना तो नहीं है ना, कि वो बदसूरती क्यों ले लिया, खूबसूरती क्यों, वो अल्लाह की देन है, उस पर हमारा क्या कमाल है। हमारे अखलाक अच्छे हों ये हमारा कमाल है। हाँ, हमारे आखिरत में हमारा चेहरा खूबसूरत हो, ऐसे अमाल दुनिया में करें, ये कमाल है हमारा। और वो आईना देखते वक्त ये दुआ हमको तालीम दे रही है। ये दुआएं देखिए, हम दुआएं बोल के छोड़ देते हैं ना दुआएं, मगर इन दुआओं में इतनी तालीमात हैं, ये सब समझ के पढ़ने वाला जब भी कोई काम किया उसकी इस्लाह हो जाती है, जलसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आईना देखते देखते दुआ में ही इस्लाह हो गई, समझ के दुआ पढ़ लिया तो। और हमारी इस्लाह के लिए पूरा 1 लाख का जलसा चाहिए, कोई यूपी से कोई मुकर्रिर आना बहुत बड़े, हैदराबाद से कोई आना, फिर उनका बयान होना, इतना सब खर्च करके हमको बयान सुना, फिर भी हमारे अंदर तब्दीली नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी दुआएं हमारी इस्लाह कर देती है अगर हम अपने मामूलात ठीक कर लिए। सुरमा लगाने की दुआ, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, इलाही मुझे सुनने और देखने से बहरामंद कर, यानी ऐसा देखना अता फरमा जिससे मुझे फ़ायदा हो, ऐसा सुनना अता फरमा जिससे मुझे फ़ायदा हो, न हराम की तरफ देखूं ना हराम सुनूं। तो सुरमा लगाते वक्त ये हर नमाज के बाद कलमे तय्यबा या कलमे शहादत पढ़ो, बड़ा सवाब पाओगे। कलमे तय्यबा कलमे शहादत, इसमें बार बार अल्लाह की तौहीद का इकरार है, नबी की रिसालत का इकरार है। नंबर 8, जब अपनी या किसी मुसलमान भाई की कोई चीज़ देखो और पसंद आए तो बरकत की दुआ करो और कहो तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अल्लाहुम्मा बारिक लहू फीह वला तदुर्रुहु। तर्जुमा देखिए, अल्लाह उसे उसमें बरकत दे कि ये नुकसान ना पहुंचाए, या उर्दू में कह दो अल्लाह बरकत दे, इस तरह नज़र नहीं लगेगी। तो किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है आपको, कोई भी चीज़ है किसी के पास अच्छा मोबाइल है, आप यही कह दीजिए अल्लाह बरकत दे आप। या इस दुआ में क्या है,
अल्लाह इसमें बरकत दे और इसके नुकसान से बचाए, क्योंकि मोबाइल का नुकसान बहुत है। तो अच्छा मोबाइल देखें किसी के पास तो ये दुआ पढ़ दें, अल्लाह इसमें बरकत दे आपके मोबाइल में और इसके नुकसान से आपको बचाए। और इसके नुकसान से बच गए तो बहुत कुछ बच जाएगा। और क्या है, तो कोई दूसरा, इस दुआ से देखिए हसद खत्म होता हमारे अंदर से। हसद क्या है, दूसरे के पास कोई चीज अच्छी है तो अब हमको जलन हो रही है, इसके पास से चले जाना है चीज। अब ये दुआ पढ़ेंगे तो कहाँ रहेगा हसद। आप तो और बरकत की दुआ कर रहे हैं और मिलना इसको। और कोई बेहतरीन गाड़ी लिया, लेते एक्सीडेंट हो गया, धक्का मार दिया, खुश, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत गाड़ी लेके तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, तो हसद है ये। तब ये दुआ देंगे अल्लाह बरकत दे, तो कहाँ से हसद करेंगे आप बोलिए। उसकी गाड़ी सही भी चलेगी तो आपको क्या ख्याल रहेगा, मैं शुरू में मैं भी दुआ दिया था ना, तो मेरी भी दुआ शामिल है इसमें, तो हसद कैसा होगा बोलिए। तो हसद से बचाती है ये चीज़, और खैर खाही है एक मुसलमान की इसमें। नंबर 9, जब कोई ऐसी चीज़ देखो जो तुम्हें नापसंद आए, यानी तुम बुरा शगुन पाओ, तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा ला यातिल हसनात इल्ला अंत वला यदफउ सय्यिआत इल्ला अंत वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इलाही तेरे सिवा भलाई देने वाला कोई नहीं है और तेरे सिवा कोई बुराई टालने वाला नहीं, और सारी ताकत और कुव्वत अल्लाह ही के लिए है। कोई काम ऐसा हो गया कि आपको डर हो रहा है, क्या होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, वो सुबह सुबह जाने वाले, वो लीमुआ थे, ऊपर से चले गया मैं और इसको देख लिया सुबह सुबह, और क्या क्या लोग जो है, खैर कुछ वो तो तवहम परस्ती की तो बात ही नहीं करना है, लेकिन फिर भी कोई तवहम परस्ती का ही इलाज चाहता है कि भाई ये वहम ख़त्म हो जाना मेरे अंदर से। तो ये दुआ बहुत अच्छी है। क्या है, देखिए, अल्लाह के सिवा कोई भलाई देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नुकसान से बचाने वाला नहीं है। ये ईमान मजबूत होगा तो तवहम परस्ती में नहीं पड़ेगा, फिर उंगल के जाएगा, फिर भी मज़े में रहेगा। अल्लाह चाहेगा तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ख़त्म। नंबर 10, किसी को बीमारी या मुसीबत में मुब्तला देखो तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इस चीज़ से नजात दी, यानी जो बीमारी में सामने वाला मुब्तला है, अल्लाह ने मुझे उससे नजात दी जिसमें तुझे मुब्तला किया, और मुझे अपनी बहुत सी मखलूक पर फजीलत बख्शी। तो इसमें शुक्र है सेहत के ऊपर कि अल्लाह ने हमें उस बीमारी से बचा लिया, ये शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का। अब यहाँ एक शेर लिख रहे हैं, देखिए, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। दुआए खैर, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, आमीन। तम्मत व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया हमारा इस्लाम का, बिल्कुल बुनियादी किताब, एक एक लफ्ज़ याद रख लेने के काबिल, इसीलिए मुख्तसर लिखे हैं। दूसरा हिस्सा शुरू होगा इंशाअल्लाह।